Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Beyond the Levels Hub. And today the subject which we are discussing for O levels is Islamiyat, and the subject code is 2058. So Islamiyat का paper pattern सबसे पहले discuss करते हैं before the content of the syllabus. Paper pattern Islamiyat का is very basic, and most importantly, as you can see, paper 1 and paper 2, the pattern of both of these papers is completely same, like 110% same. Marks, division, question types, like how many questions you have to attempt and which ones are compulsory, which ones are choice questions. Everything is exact same. The only difference is obviously between the content of these questions, the chapters between the two papers. Let's start with paper 1. So paper 1 has 50 marks and the time for this paper is 1 hour 30 minutes. इसमें अब आपके पास क्या होगा? You'll be given 5 questions. Remember, I have written here 5 questions given. अगर मैं यहाँ पे टोटल लिखती तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि टोटल शायद क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने हैं. नो, 5 questions are given, not you have to attempt. 5 questions are given. You have to attempt any 4. और any 4 से मतलब है कि आपके पास कंपल्शन क्वेश्चन अब कौन से हैं इसमें से? क्वेश्चन 1 and 2. These are compulsory questions. You don't have a choice. You have to attempt question number 1 and you have to attempt question number 2. No choice. ठीक है, तो क्वेश्चन 1 2 कंपल्सरी, उसके बाद क्वेश्चन 3 4 5, 3 क्वेश्चन बच गए आपके पास. इसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2. आई हैव रिटन अटेम्प्ट एनी 2 फ्रॉम लास्ट 3 क्वेश्चंस. So question 1 compulsory, question 2 compulsory, and question 3 4 5 attempt any 2 from those 3 questions. Similarly, paper 2, 50 marks again, 1 hour 30 minutes again. You'll be given 5 questions in total. Given 5 questions. Again here, question 1 and question 2 are compulsory questions. इसमें भी हम देखते हैं कि 1 और 2 questions में कौन से ज़्यादा chapters होते हैं. But question 1 and 2 are compulsory questions. You don't have a choice. You have to attempt question 1. You have to attempt question 2. उसके बाद question number 3, 4 and 5. 3 questions and last 3. उसमें से you'll be having a choice of any one. You can leave any one question, skip one question and attempt any 2 questions of your choice. So दोनों papers 5 questions given. Question number 1 compulsory, question number 2 compulsory, and from the last 3 questions attempt any 2. Last 3 questions attempt any 2 of them. You can leave 1 question. So इस तरह से total आपने 4 questions आपने इधर attempt करने हैं, 4 questions इधर attempt करने हैं for 50 marks. और आगे इन questions के further parts होंगे, right? So this was about the paper pattern. I hope it's clear. Let's move to the content of this syllabus. पहले हम बात करते हैं पेपर 1 की. पेपर 1 में आपके पास 4 बेसिक यूनिट्स हैं, बेसिक चैप्टर्स कह लें, यूनिट्स कह लें. इसमें फर्दर इसमें टॉपिक्स मल्टीपल हैं, राइट? सो मेजर थीम्स ऑफ होली कुरान. इसमें बेसिकली आपकी सूराज हैं, कुरानिक पैसेजेस, जिनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कुरानिक पैसेजेस बोलते हो. इसमें आपके पास मल्टीपल सूराज होंगी जो कि आपके इस्लामियात के अपेंडिक्स में अगर आप देखोगे तो उसमें भी आपको सिलेबस में दिया होगा. सिलेबस, इफ़ यू ओपन द सिलेबस, वहाँ पे एक पेज होगा जिस पे लिखा होगा अपेंडिक्स. सूराज का भी अपेंडिक्स है, अहदीस का भी अपेंडिक्स है. उसमें अपेंडिक्स में आपके पास जो सूराज हैं उसमें से आपको 3 to 4 सूराज दी होंगी, 3 to 4 पैसेजेस दिए होंगे, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दोज पैसेजेस फॉर दिस क्वेश्चन. एंड दिस इज़ अबाउट क्वेश्चन 1 बाय द वे. ठीक है. एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आता है यूनिट, दैट इज़ हिस्ट्री एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कुरान. एंड वाई दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट? क्योंकि इसमें से ही आपका इन 80%, इनफैक्ट 90%, आई वुड से 90% ऑफ द केसेस इसी में से आपका कंपल्सरी क्वेश्चन आता है, विच इज़ क्वेश्चन 2. कंपल्सरी क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी, वो तो पैसेजेस हो गए. फिर यहाँ से आपके शुरू हो जाते हैं इनमें से डिटेल्ड क्वेश्चन, जो स्ट्रक्चर्ड लंबे लंबे सवाल होते हैं, 10 मार्क्स 14 मार्क्स, वो वाले क्वेश्चन हैं आपके ये. और इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 होता है इन 90-95% ऑफ द केसेस अबाउट द हिस्ट्री एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कुरान. सो इट इज़ अ सुपर इम्पॉर्टेंट चैप्टर. यू कैन नॉट लीव एनी सिंगल पॉइंट फ्रॉम दिस. नंबर 3, अगेन दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम. ये इसलिए चैप्टर है क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑब्वियसली बहुत सारे लाइफ इवेंट्स हैं जो आपको पता होंगे.
और अगेन दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा हो जाता है कि दिस इज़ सच अ वास्ट एंड सच अ लेंथी चैप्टर, इतने छोटे छोटे डिटेल्स इवेंट्स हैं इसमें कि यूजुअली कैम्ब्रिज आपको इसमें से 2 क्वेश्चंस भी दे देता है। सो एक तरह से ये भी कंपल्सरी चैप्टर बन जाता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 ये आ गया, फिर क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 जो लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं, 2 इसमें से आ गए, 1 इसमें से आ गया। तो अगर आप एटलीस्ट आपको एक तो अटैम्प्ट करना है ना इसमें से, यू कैन नॉट लीव बोथ ऑफ द क्वेश्चन, यू कैन ओनली स्किप 1 क्वेश्चन, राइट? सो दिस इज़ ऑल्सो सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको भी कंपल्सरी समझें। एंड देन दिस द फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी, मुझे पूरी इस्लामियात में सबसे मुश्किल चैप्टर ये लगता था। देयर वर सो मैनी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, बट इसकी एक अच्छी चीज़ ये है कि ये आप फिर भी आपके पास थोड़ी बहुत चॉइस है, क्योंकि मोस्टली इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन। सो अगर आपको वो इन केस वो पर्सनैलिटी नहीं भी आती तो यू कैन स्किप एंड अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। बट अगेन गाइज दिस इज़ कम्प्लीटली प्रिडिक्शन, और ये इस तरह के ट्रेंड है कैम्ब्रिज में कि इसमें से एक क्वेश्चन आता है, बट दिस इज़ नॉट अ कंपल्शन कि एक ही क्वेश्चन आएगा। सो टू प्रिपेयर आपने हर चैप्टर को करके जाना है। व्हाट इफ़ इसमें से 2 क्वेश्चंस आ गए, फिर आप क्या करोगे? फिर तो एक अटैम्प्ट करना पड़ेगा, राइट? सो डू नॉट लीव एनीथिंग, प्रिपेयर एवरीथिंग, उसके बाद पेपर में जाके क्या आपको बेस्ट आता है अटैम्प्ट इट। ओके, ये अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 इज़ मेनली अबाउट अहादीस एंड इट्स टीचिंग्स। फर्स्ट वन इज़ मेजर टीचिंग्स ऑफ अहादीस, दिस इज़ अबाउट द क्वेश्चन 1। और जिस तरह से यहाँ पे आपको कुरानिक पैसेजेस दिए होते थे, यहाँ पे आपको अहादीस दी होंगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अगेन इसका भी अपेंडिक्स आपके कैम्ब्रिज के ऑफिशियल सिलेबस में है, उसके अलावा आपकी कैम्ब्रिज के बुक्स में भी होंगी अहादीस। उस अपेंडिक्स में से आपने वो अहादीस जो हैं उनके उसकी टीचिंग्स, उसको वो आपको क्या डेली लाइफ में लेसन्स दे रही हैं, वो चीज़ें आपने लर्न करनी है, राइट? क्वेश्चन नंबर 2 इसमें से आता होता है आपका यूजुअली द हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अहादीस। ये बिल्कुल सिमिलर है द हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान था जैसे इसमें, वैसे इट्स अबाउट अहादीस सिंस पेपर 2। सो द हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अहादीस सिमिलरली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ऑल्सो कंपल्सरी इन पेपर 2। सो इसमें से भी कंपल्सरी क्वेश्चन आपका आता है इन 90% ऑफ द केसेस। नंबर 3, रूल ऑफ राइटली गाइडेड कैलिफ्स एंड देयर इंपॉर्टेंस एज लीडर्स। ये भी आपका एक बहुत ही एक क्रूशियल चैप्टर होता है। इसमें आपके पास जो आपके 4 कैलिफ्स हैं उनका रूल डिटेल में आपको बताया होता है कि उनका रूल कैसा था, उसमें क्या मेजर इवेंट्स हुए, किस वजह से वो एंड हुआ, और फिर उसका एक एवेलुएशन पॉइंट होता है कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी क्या लेसन्स हैं जो आप मॉडर्न डे रूलर्स उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने रूल में। लास्ट वन इज़ आर्टिकल्स ऑफ फेथ एंड पिलर्स ऑफ इस्लाम। ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, इट्स सुपर ईजी। सो यूजुअली क्या होता है, यूजुअल पैटर्न अगेन मैं बता रही हूँ, इसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, बट द यूजुअल पैटर्न इज़ क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी, क्वेश्चन नंबर 2 compulsory, and then question number 3 is from this, and question number 4 and 5 both are from this। क्योंकि एक क्वेश्चन वो आपको आर्टिकल्स ऑफ फेथ में से दे देते हैं और एक क्वेश्चन वो आपको कोई एक पिलर ऑफ इस्लाम दे देते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए डिटेल्ड क्वेश्चन आता है। तो यूजुअली ऐसा होता है कि 5 सेपरेट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ फेथ एंड पिलर्स ऑफ इस्लाम 2 एक ही चैप्टर है, बट पीपल ट्रीट इट एज 2 डिफरेंट चैप्टर्स। बच्चे भी अक्सर इसको 2 डिफरेंट चैप्टर्स की तरह ट्रीट करते हैं और याद करते हैं पॉइंट्स। सो आप समझें कि 5 चैप्टर्स हैं आर्टिकल्स ऑफ फेथ एंड पिलर्स ऑफ इस्लाम। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये 5 चैप्टर्स बन जाएंगे और हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, और ये 2 कंपल्सरी हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 1 और 2 आना है विच इज़ कंपल्सरी। वंस अगेन गाइज ये एक यूजुअल ट्रेंड है जो कि फॉलो हो रहा है पास्ट पेपर में, बट ये कोई कंपल्शन नहीं है कि ऐसे ही होगा। हो सकता है वो कंपल्सरी क्वेश्चन आपको ये इसमें से दे दें, ये हो सकता है कि आपको वो 2 क्वेश्चन इसमें से दे दें, एक क्वेश्चन इसमें से दें। सो कुछ भी चॉइस पे पहले से नहीं छोड़ना है, एग्ज़ाम से पहले याद सब कुछ करना है, हर चैप्टर से गो थ्रू करना है, हर चैप्टर के पॉइंट्स स्टडी करने हैं, हर चैप्टर को याद करना है। बाद में इन पेपर आपको बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि चैप्टर आपको आता है बट उसमें से कुछ ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन दे देते हैं कि वो आपको नहीं होता आपसे। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको डिटेल्ड क्वेश्चन आता है जो उसका एवेलुएशन वाला उसका सेकंड पार्ट होता है, यू विल लर्न अबाउट इट, बट जो एवेलुएशन वाला भी आपको एक सेकंड पार्ट देते हैं विच इज़ अ शॉर्ट पार्ट 4 मार्क्स यूजुअली, वो आपको नहीं आता। तो फिर आपको वो क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ता है। इसलिए पहले से कोई चैप्टर नहीं छोड़ना, यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी चैप्टर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम में फिर जो आपको बेस्ट आए अटेम्प्ट इट। एंड वन मोर थिंग, इस्लामियात के पेपर में भी अक्सर बच्चों को टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है। सो पहले से अपने आप को रेडी करना है कि आपने पेपर 1 आवर 30 मिनट्स है, 1 आवर 20 मिनट्स में समझे आपका पेपर हो जाना चाहिए। स्पीड अप योर राइटिंग, कंटेंट आपको अच्छी तरह आना चाहिए, क्योंकि
जो डिटेल्ड आपके 10 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको बहुत तेज़ लिखना पड़ता है, उसमें सोचने का टाइम नहीं है आपके पास। सोचना जहाँ आपने सोचना है वो आपने 4 मार्क वाला जो वैल्यूएशन वाला आपका पार्ट होता है, पार्ट बी, उसी में टाइम लगेगा आपका, राइट। सो या दिस वॉज इट। पेपर 1 पेपर 2 सिमिलर पैटर्न हैं दोनों के, द डिफरेंस इज बिटवीन द कॉन्टेंट, एंड दिस वॉज अबाउट द कॉन्टेंट, 4 चैप्टर्स इन ईच पेपर। और अगेन आपके पास लास्ट 3 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन स्किप करने का चॉइस है, बाकी आपने टोटल 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन 1 2 कंपल्सरी एंड एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 3 क्वेश्चंस. So that was it from my side. I hope you understood and thank you very much. I'll see you all again. Allah Hafiz.